क्लास शुरू करते हैं. Let us start the class, my dear students. We have completed the theory and discussion of both the chapters. Now we are going to study, or now we are going to revise these chapters. So let us look into the CBSE exemplar questions and study them well. Let us start with the first question. I am going to read the question for you. I will read the question and then we'll ask you the answers. You are supposed to answer these questions. Please answer these questions and then we will study the correct answer. Which one of the following set of phenomena would increase on raising the temperature? Diffusion, evaporation, compression of gases. Second, evaporation, compression of gases, solubility. Evaporation, diffusion, expansion of gases. Evaporation, solubility, diffusion, and compression of gases. Out of these all, which property, which phenomena will increase when increasing the temperature? बताइए. What is going to be the correct answer? बताइए. ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा. ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा फिर. चलिए बताइए जल्दी से. बताइए बताइए, ऐसे बैठे रहेंगे थोड़ी चलेगा. ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर आएगा? ए में देखिए, किसी ने बोला ए में कंप्रेशन ऑफ गैस लिखा है. टेम्परेचर बढ़ने से क्या गैस जो है वो कंप्रेस होगी क्या? थोड़ा सोचिए, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन सी. सर सी. सी. ऑप्शन सी. वेरी गुड, वेरी गुड. सी. समझ में आया क्या ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा आंसर होना चाहिए? यस सर. आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी. मतलब ऑप्शन सी में जो सारी चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बढ़ेगी. क्या क्या है? इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा और गैसेस का एक्सपांशन होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस. Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct condition. You need to identify the correct condition where these gases can be compressed and turned into the liquefied gases. So low temperature and low pressure, high temperature and low pressure, low temperature and high pressure, high temperature and high pressure. In what condition gases can be liquefied? Out of A, B, C. Option C. Very good. Option C. ऑप्शन डी. Very good. Very good. Option D. नहीं, D नहीं होगा बेटा. ऑप्शन सी. D is wrong. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. रोहित जो हमारी भी Option C should be the correct answer because gases can be easily liquefied when the temperature is low and pressure is high. Let's look at the third question. The property to flow is unique to fluids. Which one of the following statement is correct? Only gases behave like fluids. Gases and solids behave like fluids.
gases and liquid behave like fluids. Only liquids are fluids. बताइए। Only D. Option D. Gases and solids behave like fluids कैसे हो सकता है? Solid कहाँ होता है? Solid cannot flow. सर ऑप्शन सी। Option D. सर ऑप्शन सी। सी सर। Option C. वेरी गुड बच्चों, ऐसे पार्टिसिपेट करना है। करेक्ट आंसर है, क्या होगा करेक्ट आंसर? Option D. ऑप्शन Option सी। D. ऑप्शन सी। Gases and liquids behave like fluid. Gases and liquids behave like fluid. प्लीज याद रखिए, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है, याद रखना है इस बात को। चलते हैं बच्चों, try and study little further. चलिए, during summer, water kept in an earthen pot become cool because of the phenomena of diffusion, transpiration, osmosis and evaporation. बच्चे ये क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसको सिलेबस में डाल दिया गया है। पहले मुझे पर फिर भी इसका आंसर होगा इवेपोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent the correct arrangement? देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन सी। करेक्ट अरेंजमेंट में अरेंज करना है। वाटर, एयर एंड विंड, एयर, शुगर एंड ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, सॉल्ट, जूस एंड एयर। Option D. सर ऑप्शन Option D. ऑप्शन सी। Option D. Option D. D. देखिए Option जो D. सॉलिड होता है उसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन सी सर। होता है, तो सर, ऑयल ऑप्शन तो सी। सॉलिड Option नहीं। D. देखिए हाँ, Option C. ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। चलिए नेक्स्ट। On converting 25 degree centigrade, 38 degree centigrade and 66 degree centigrade to Kelvin scale, correct sequence would be, बताइए। चलिए मैं नहीं पढ़ता, आप ही बता दीजिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया है, करेक्ट सीक्वेंस बता दीजिए। Option B. Option A. Sir, option C. बेटा सी तो बिल्कुल गलत है। Option C. ए और बी और डी के बारे में सोच सकते हैं। चलिए एक मैंने ऑप्शन आपको बता दिया। Option D. Option A. Option B. देखिए अगर 25 में 25 में 273 ऐड करते हैं तो 298 होगा। 38 में 273 ऐड करते हैं तो 311 होगा। देखिए 311 सिर्फ और सिर्फ ए में है, सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। Option A. वेरी गुड, Option D. वेरी गुड। चलिए Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए करेक्ट है, आप लोग के लिए बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे में से करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। we'll have to find the correct statement. Conversion of solid into vapors without passing through the liquid state is called sublimation. Conversion of solid into vapors without passing through the liquid state is called sublimation. Conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called vaporization. Conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called freezing. Conversion of solid into liquid is called sublimation. बताइए कौन सा सही है? Option A. Very good. Option A. Option A.
ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Conversion of solid into vapors without passing through the liquid state is called the sublimation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और फिर पढ़ते हैं उसको। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइइथाइल ईथर, एसीटोन एंड नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 degree centigrade, 56 degree centigrade and 118 degree centigrade respectively. Which one of the following correctly represents their boiling points in Kelvin? चलिए फिर से केल्विन में कन्वर्ट करना है, बता दीजिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। वेरी गुड। सी होगा, डी होगा, बताइए फिर से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, बताइए कौन सा? सी। डी। यार सोचो कि देखिए सबका जो यूनिट डिजिट है ऑप्शन डी। ऐड करके देखो, सबके यूनिट डिजिट में 3 ऐड करके देखो। 5 में 3 ऐड किया तो 308 आएगा, तो बाकी दो ऑप्शन निकल जाते हैं, ए और डी। फिर 6 में 3 ऐड किया तो 9 आएगा, ऑप्शन सी। तो बी और सी अभी भी बचते हैं। ऑप्शन सी। 3 ऐड किया तो 11, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा अपने आप एडिशन तो कर लो यार, एटलीस्ट एडिशन तो अच्छे से कर लिया करो, है ना? अगर अच्छे से एडिशन कर लेते हो आप, ये आंसर आपको बहुत ही इजीली मिल जाने थे, पर आप लोग एडिशन भी नहीं कर लेते अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ट्राई किया आप लोगों ने, बहुत खूब बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which condition out of the following will increase the evaporation of water? ऑप्शन ए। Increase in temperature of water, decrease in temperature. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा है। In which of the following condition the distance between the molecule of hydrogen gas would increase? The distance between the molecules of hydrogen gas would increase. Increasing pressure on hydrogen containing in a closed container, some hydrogen gas leaking out of the container, increasing the volume of the container of hydrogen gas, adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container. ये चार ऑप्शन आपको पढ़ के ये बताना है कि in which of the following condition the distance between the molecules of hydrogen gas would increase. या तो ये आंसर ऑप्शन ए। 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 and 2 and 4। बताइए कौन सा आंसर सही है? 1 and 4। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन ए में तो 1 है, और अगर प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया है तो उनके बीच का डिस्टेंस तो कम हो जाएगा। हमें तो डिस्टेंस बढ़ाना है ना, इंक्रीज करना है। द डिस्टेंस। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी में क्या है, पढ़ के बताइए। ऑप्शन डी। अगर आप हाइड्रोजन गैस ऐड कर देते हैं बच्चों, तो फिर वो और नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि आप वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करने जा रहे हैं। तो डी भी नहीं। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सी में सोचिए क्या है, सम हाइड्रोजन गैस लीक हो जाएगा और वॉल्यूम आप, यस ऑप्शन सी जो है तो हम सही कह सकते हैं। ओके, तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। चलिए थोड़ा सा देखिए, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, अब ये वाला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। Evaporation of a liquid at room temperature. Cooling. Question number भारत का अभियान फिट इंडिया। A.
Evaporation of a liquid at room temperature leads to a cooling effect. Leads to a cooling effect. Next. हेलो बच्चों, कुछ लोग बातें कर रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं. हेलो. निर्भय कटारा. Okay. Let's move forward. Next question. At room temperature, the force of attraction between the particles of sodium substances are less than those which exist in the gaseous state. At room temperature, forces of attraction between the particles of solid substance. Solid substance के particle, gaseous substance के particle से क्या होते हैं? At room temperature. Force of attraction कैसे होते हैं? More than. More than. Very good. More than, greater than. Very good. चलिए next. The arrangement of particle is less ordered in the dash state. However, there is no order in the dash state. बताइए. The arrangement of particle is less order in dash state. However, there is no order dash state. आपको सॉलिड, लिक्विड या गैस में से तीन में से ऑप्शन चूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. गैस. पहली ब्लैंक में क्या आएगा? पूरा आंसर बोलिए. Yes. चलिए मैं ही बता देता हूँ. बोल रहे हैं. The arrangement of particle is less order in the liquid state. The arrangement of particle is less ordered in the liquid state. However, there is no order in the gaseous state. However, there is no order in the gaseous state. Next question. Dash is the change of solid state directly to the vapor state without going through the dash state. Dash is the change of solid state directly to the vapor state without going to the dash state. गैसियस एंड लिक्विड. नहीं. इसमें गैसियस आएगा और सेकंड में लिक्विड आएगा. लिक्विड सही है. पहले में गैस और दूसरे में लिक्विड. नहीं, पहले में गैस और लिक्विड. फर्स्ट में सॉलिड आएगा, सेकंड में लिक्विड. नहीं. फर्स्ट में सॉलिड, सेकंड में फर्स्ट में सब्लिमेशन आएगा. फर्स्ट में क्या आएगा? सब्लिमेशन. Ssublimation change of solid state vapor state without going to liquid state. तो फर्स्ट में सब्लिमेशन आएगा, सेकंड में क्या आएगा? फर्स्ट में सब्लिमेशन आएगा, लिक्विड. सेकंड में लिक्विड आएगा. चलिए नेक्स्ट. The phenomena of change of a liquid into gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation. बच्चों इसको निकाल दिया है इस बार सिलेबस से. evaporation को निकाल दिया है. चलिए मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग खेलते हैं. चलिए मैं सारे ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा. प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम. प्रेशर किस में मेजर होता है, या ये सारी जो क्वांटिटी है वो किस में मेजर होती है वो बताना है. क्यूबिक मीटर, किलोग्राम, पास्कल, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. चलिए बताइए. प्रेशर. पास्कल. वेरी गुड. वेरी गुड. चलिए प्रेशर को हम किससे कनेक्ट करेंगे? पास्कल से. है ना? प्रेशर को हम पास्कल. टेम्परेचर. केल्विन. वेरी गुड. डेंसिटी. किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम. मास. किलोग्राम. किलोग्राम. वॉल्यूम. मीटर क्यूब.
cubic meter, क्यूबिक cubic meter, चलिए दूसरा देखते हैं. The non-SI and SI unit of some of the physical quantities are given in the column A and column B. Match the units belonging to the same physical quantity. Degree Celsius, centimeter, gram per centimeter cube, bar and milligram, kilogram, pascal, meter, Kelvin and kilogram. देखिए लेफ्ट साइड हमें ऐसा ही दिया गया है, सॉरी लेफ्ट साइड में नॉन एसआई यूनिट है और राइट साइड एसआई यूनिट है. आपको बताना है कि कौन से दोनों यूनिट एक ही क्वांटिटी के हैं. जैसे सेल्सियस, तो सेल्सियस का यूनिट, सेल्सियस जैसा ही यूनिट कौन सा है? केल्विन केल्विन, वेरी गुड. Kelvin. सेंटीमीटर बताइए, सेंटीमीटर. मीटर, meter, meter, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. किलोग्राम पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब kilogram per meter cube, बार, बार किलोग्राम, pascal, नहीं किलोग्राम वाला ऑप्शन गलत है. पास्कल, pascal, दोनों ही की यूनिट है, बार एंड पास्कल. Pascal. ओके. मिलीग्राम बताइए, मिलीग्राम. किलोग्राम, किलोग्राम Kilogram. वेरी गुड. बच्चों ये पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, इसके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. लिखोगे ना? Yes, sir. देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. यस सर ठीक है. चलिए दूसरी अब देखते हैं. लेट अस लुक एट दी अनदर वन. आपने जितने पढ़ा है उतने ही नहीं बेटा, सब लिखने का ट्राई करना है. जितने पढ़ा है उतने ही लिखेंगे तो कैसे हो चलेगा? ओके थोड़ा और लिखना पड़ेगा ना. लिखेंगे कि नहीं? ओके सर Yes, sir. मुझे पता है आप लोग तो बहुत अच्छे हैं. यस सर चलिए Yes, थोड़ा और देखते Thank हैं you. बच्चों, थोड़ा सा और है ना. दूसरे चैप्टर का भी कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं. Yes, sir. देखेंगे ना? Yes, sir. चलिए बच्चों, लेट अस लुक एट दैट. सर चलिए 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 भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं. चलिए देखते हैं. हाँ चलिए कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं चैप्टर 2 से. चलिए. Which of the following statements are true for pure substances? Pure substances contain only one kind of particle. Pure substances may be compound or mixtures. Pure substances have same composition throughout. Pure substances can be exemplified by all elements other than nickel. बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन बी option A sir, देखिए या तो एक या दो, या तो एक या तीन है, या तो तीन या चार है, या तो दो या तीन है. sir option A, Option B. ऑप्शन बी Option B. देखिए ऑप्शन बी सही हो सकता Option है. B. ऑप्शन बी सही हो सकता है क्योंकि पहला जो पहला जो ऑप्शन है प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वो तो बिल्कुल सही है. प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये भी सही है. तो 1 and 3 ऑप्शन बी सही होगा. चलिए नेक्स्ट. रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड. रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड corrosion, and it's a physical as well as chemical change. Dissolution and is a physical change. Corrosion and it is chemical change. Dissolution and it is a chemical change. बताइए corrosion कैसा चेंज है? मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको. corrosion, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसको corrosion कहते हैं. मैंने आंसर बता दिया. Option अब C, आपको सिर्फ option ये C, बताना है कि sir. corrosion कैसा चेंज है. ऑप्शन सी, option C sir, option C, Option C. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड. थोड़ा याद करिए कौन सा ऐसा चेंज था जो फिजिकल चेंज भी था और केमिकल चेंज भी था.
ऐसा टेंस था बर्निंग ऑफ कैंडल, ऐसा टेंस था बर्निंग ऑफ कैंडल। चलिए नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज, a mixture of sulfur and carbon disulfide is heterogeneous and show tyndall effect, homogeneous and show tyndall effect, heterogeneous and does not, homogeneous and does not show tyndall effect। बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। वेरी गुड। देखिए ये जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है। सल्फर पाउडर कैन इजीली बी डिसॉल्व इनटू द कार्बन डाइसल्फाइड, सो ये होमोजेनियस है एंड दैट डज नॉट शो द टिंडाल इफेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज डी, ए बी सी डी डी लास्ट वाला। Tincture of iodine has an antiseptic property. This solution is made by dissolving iodine in potassium iodine, iodine in Vaseline, iodine in water, iodine in alcohol। बताइए tincture of Option D. ऑप्शन डी। Option D. Option D is correct answer. Tincture iodine is made by dissolving iodine in alcohol. Which of the following are homogeneous in nature? Which of the following are homogeneous in nature? Ice, wood, soil, and air. Option C. Option C. Very good. Option C. Ice and air जो है वो homogeneous, wood and soil homogeneous नहीं है। Very good बच्चों, very good. I am so happy. चलिए आगे चलते हैं and let's have a look to the question number 6. Which of the following are the physical changes? Melting of iron metal, rusting of iron metal, bending of iron rod, drawing a wire of iron metal। बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, बताइए कौन सा? ऑप्शन सी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पहला, Option C. ऑप्शन सी। वेरी गुड। Option C. रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है, ऑप्शन सी। बाकी सब फिजिकल चेंज है। Chemical. All other changes are physical changes। Next question, which of the following are chemical changes? Decaying of wood, burning of wood, sewing of wood, hammering of nail into piece of wood। बताइए फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। Option A. ऑप्शन बी। Option B. Option D. Option D. ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। Option C. हो गया। ऑप्शन ए जो है वो सही है। डिकेइंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ फूड दोनों केमिकल चेंजेस है, जबकि सोइंग ऑफ फूड एंड हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू पीस ऑफ वुड दे बोथ आर द फिजिकल चेंजेस। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द केमिकल चेंजेस, द रेस्ट ऑफ देम आर द फिजिकल चेंजेस। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन, two substances A and B were made to react to form a third substance A2B according to the following reaction: 2A plus B that gives A2B. Which of the following statements concerning this reaction are incorrect? Two substances A and B were made to react to form a third substance. Third substance मतलब नया substance बनता है A2B according to the following reaction: 2A plus B that gives A2B. Which of the following statement correct in this reaction? The product A2B shows the property of substance A and B. The product will always have fixed composition. The product so formed cannot be classified as a compound. The product so formed is an element. Which of the following statement concerning this reaction are incorrect? याद रखना, हमें जो गलत स्टेटमेंट है उनको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना नहीं है। तो बताइए ये चारों में से कौन कौन से गलत है? पहला वाला गलत है कि सही है? पहला वाला द प्रोडक्ट नहीं, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ द प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी,
नया फॉर्म कंपाउंड ए और बी की प्रॉपर्टी दिखाएगा? यस और नो? Yes, sir. नहीं दिखाएगा, Yes, sir. नहीं दिखाएगा। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ये सही है। मतलब ये हमें इंक्लूड नहीं करना है आंसर में। तो जहां पे भी आंसर में Option 2 C. दिया गया है वो सारे गलत है। तो आप देखिए यहाँ पे भी आंसर में 2 है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आंसर में 2 दिख रहा है हमको, यहाँ पे भी 2 है। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे आंसर में 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ध्यान पे आ रहा है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। द केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई। देखिए एक्स एंड वाई मिलके प्रोडक्ट पी बनाते हैं। X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reaction. Which of the following containing species X, Y and P are correct? P is a compound. X and Y are compound. X and Y are element. पहले तो बताइए क्या P compound होगा? Is it correct or not?